Hi guys, I welcome all of you to my channel which is Learning with Fun. So yesterday we saw the difference between high level language and low level language. Now moving on further, today we will see what are the different type of programming paradigms which include modular programming, object oriented programming and procedural programming. And after that, we will just discuss the concept of object-oriented programming, that is, objects and classes in Java. So let's begin with our class. So let's understand what is a programming paradigm. Okay, मैं आपको ये वाला जो term है, I want to explain this term with a very simple day-to-day example. अगर आप में से कोई baking, if you are fond of baking और आपने bake किया है कभी घर पे cake, then you must be knowing that cake bake करने के लिए we can bake the cake in microwave oven, we can bake the cake even in a kadhai, you know, a deep pot, or we can also use an air fryer to bake the cake. In all these three different types of baking the cake, all these three methods, we will get the same result, that we will get the cake only. But the method which we are using to bake that cake are different, right? So similarly, what is programming paradigm? It is a style of programming, a way of thinking about software construction. That means when we are going to develop a software, we are thinking about the way, how can we develop it? So it doesn't refer to a specific language. कोई particular language के बारे में आप programming paradigm में बात नहीं करते हो, rather आप इस बारे में बात करते हो कि आप किस तरीके से program करोगे, कौन सा way use करोगे program करने का. Some languages make it easy to write in some paradigms, but not others. तो कुछ language कुछ paradigms में better work करते हैं. I hope you must have understood what is programming paradigm. Okay. Okay. Now moving on to the three different types of programming paradigms. The first one is procedural programming. The second one is object-oriented programming, and the third one is modular programming. Now I will explain you one by one what all these three paradigms refer to. So procedural programming में क्या होता है? Actually हम एक top down approach use करते हैं. Top down approach means जो instructions लिखा होता है उसे top से लेकर down तक उसको execute करते हैं. Top से लेकर down, उसका execution pattern top से लेकर down होता है. और इसमें जो instructions होते हैं वो procedures के form में लिखे होते हैं. Procedures क्या होता है? Procedures होता है list of instruction जो कंप्यूटर को बताता है step by step कि करना क्या है. ठीक है? Procedural programming is also known as inline programming. Now the next is modular programming. तो procedural programming में क्या problem आ रही थी कि बहुत सारा procedures हम लिखते जा रहे थे और कोई सेम चीज हमें कंप्यूटर से करवानी है तो उसके लिए हम एक से ज्यादा प्रोसीजर लिख रहे थे, तो इससे क्या रेपिटेशन आ रहा था. तो इस चीज को, इस प्रॉब्लम को, इस लिमिटेशन को हटाने के लिए वी इंट्रोड्यूस मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. तो इसमें क्या होता है, जब प्रोग्राम का साइज बहुत लॉन्ग हो जाता है तब क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉलर ग्रुप्स में और उन ग्रुप्स को मॉड्यूल बोल देते हैं. अब ये जो मॉड्यूल बने हैं, ये मॉड्यूल एक्चुअली कुछ नहीं होता है. इन मॉड्यूल्स में जो सिमिलर प्रोसीजर्स होते हैं, जो एक ही तरीके का काम बार बार कर रहे हैं, बार बार कंप्यूटर को एक ही तरीके का काम करने को बोल रहे हैं, उन सारे प्रोसीजर्स को उठा के एक मॉड्यूल का फॉर्म दे दिया जाता है. सो दैट इज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. So what is modular programming? To reduce the size of a long program, the program is divided into smaller groups, and these groups can be termed as modules. So a set of related procedures that performs a task is known as a module, and the program which is designed using this concept is known as modular programming. Now comes the object-oriented programming, which is the most popular form of programming, and languages like C++, Java, Python, all are based on object-oriented programming.
So now let's see what is object oriented programming. As a name itself suggests, ये पूरा object के ऊपर based है. Object क्या होता है? Object कोई भी real world में मिलने वाली कोई भी entity हो सकती है जिसका कोई attribute होता है और कोई behavior होता है. अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लेना चाहें तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक पर्सन, कोई भी एक पर्सन एक ऑब्जेक्ट हो सकता है और उस पर्सन का एट्रीब्यूट क्या होगा? उस पर्सन का नेम उसका एट्रीब्यूट हो जाएगा. वो पर्सन अगर कहीं पे एम्प्लॉयड है तो उसका एम्प्लॉय आईडी कोड जो है वो उसका एट्रीब्यूट हो जाएगा. और उसका बिहेवियर क्या क्या हो जाएगा? वो वॉक करता है, वो पर्सन चलता है, वो सोता है, वो खाता है, वो पीता है, वो सब क्या हो जाएगा? उसका बिहेवियर हो जाएगा. तो एक ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या एसोसिएटेड होता है? एट्रीब्यूट एसोसिएट होता है और उसका बिहेवियर एसोसिएट होता है. इस बिहेवियर को हम मेथड भी बोलते हैं. ठीक है. और ये जो मेथड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ये बिल्कुल सेम होता है प्रोसीजर की तरह जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में यूज होता था. ठीक है. और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही अनदर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्लासेस. अब क्लासेस क्या होती है? क्लासेस जो होती है वो ऑब्जेक्ट्स का ही एक जनरलाइज्ड फॉर्म होता है, यानी एक ब्लूप्रिंट होता है. मतलब सपोज करिए अगर क्लास ऑफ एनिमल्स है ना, सपोज मैंने एक एनिमल करके एक क्लास ली, तो उस एनिमल करके क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं? डॉग्स भी आ सकते हैं, कैट्स भी आ सकते हैं. ठीक है. काउ आ सकती है, मंकीज आ सकते हैं. ये सब उस पूरे क्लास एनिमल के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे. तो क्लास कैन बी कंसिडर्ड एज अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि एनिमल्स का जो भी जनरल बिहेवियर और एट्रीब्यूट होगा वो सब डॉग्स, कैट्स, काउज, मंकीज पे अप्लाई होगा. ठीक है. अब क्योंकि हम यहाँ पे जावा लैंग्वेज पढ़ेंगे, आगे जाके हम पूरा जावा बेस्ड प्रोग्रामिंग करेंगे, तो यहाँ पे हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को इन टर्म्स ऑफ जावा आपको एक्सप्लेन करेंगे. सो अ जावा प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर क्लासेस. जावा प्रोग्राम आप लिखते हैं तो उसमें आप एक से ज्यादा क्लासेस बना सकते हैं. तो जो क्लास होता है वो एक डिस्क्रिप्शन होता है और ऑब्जेक्ट उसके एग्जाम्पल्स होते हैं. ठीक है. जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया, एक एनिमल एक पूरा एक ब्रॉड कैटेगरी हो गया और उसके अंदर हमने एग्जाम्पल्स ले लिया एनिमल्स के, जैसे डॉग्स, कैट, काउ, मंकी, सो एंड सो. ठीक है. अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगी जिससे कि डायग्राम है, by just seeing that diagram the logic will be clear कि what is actually the difference between a class and an object. Okay. तो ये हमारे पास एक बहुत सुंदर सा डायग्राम है. आपको बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे 3 डॉग्स यहाँ दिख रहे होंगे. एक तो नेपोलिटन मास्टिफ ब्रीड का है, एक माल्टीज ब्रीड का है, एक चौचो ब्रीड का है. सच बताऊं तो ये सारे ब्रीड मैं पहली बार ही सुन रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे इन ब्रीड्स को. तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो डॉग है ये एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. इस डॉग के एट्रीब्यूट्स होंगे और उसके बिहेवियर होंगे. एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे? हर डॉग का कुछ ना कुछ तो ब्रीड होगा, हर डॉग का कुछ ना कुछ तो साइज होगा जैसे हम लोगों का होता है, हर डॉग की कुछ उम्र भी तो होगी और हर डॉग का कुछ ना कुछ कलर भी होगा. ठीक है. तो ये हो गए डॉग के एट्रीब्यूट्स. और डॉग के बिहेवियर क्या क्या हुए? हर डॉग खाएगा, सोएगा, बैठेगा, उठेगा, भागेगा. तो ये सब क्या हुए? उसके बिहेवियर हो गए. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? अब हम एग्जाम्पल्स देंगे. भाई कौन सी ब्रीड, लाइक नेपोलिटन मास्टिफ एक ब्रीड हो गई. ठीक है. उसका एक पर्टिकुलर साइज हो गया जैसे लार्ज, उसका एक पर्टिकुलर एज हो गया जैसे 5 years, उसका एक पर्टिकुलर कलर हो गया जैसे ब्लैक. तो ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ये एग्जाम्पल बता रहे हैं उस डॉग क्लास का. समझ गए? तो डॉग तो क्लास हो गया और ये जो पर्टिकुलर ये जो 3 आपको डॉग्स दिख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट हो गए, यानी उस डॉग क्लास के एग्जाम्पल्स हो गए. ठीक है. अगेन फॉर द सेकेंड डॉग, ब्रीड माल्टीज, साइज स्मॉल, एज 2 years, कलर व्हाइट. आप तो समझ ही गए होंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ क्लास एंड एन ऑब्जेक्ट. So I hope आज काफी कुछ आपको क्लियर हुआ होगा regarding programs and OOP concepts and object and classes in Java. So guys, please, if you like my channel, if you like
the way I'm teaching. Please share, subscribe, and also like my channel. Thank you.